بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، 20 شعبان ہفتے کے دن چلتے پھرتے صرف 11 بار یہ غیبی دولت کی تیز ترین تسبیح پڑھ لو، شام تک 100 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ شعبان کا مہینہ ہے، رب کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رب کعبہ خود اس مہینے میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی شعبان کے مہینے میں رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، میرا رب اسے 70 گنا عطا کرتا ہے۔ اگر آپ بھی شعبان کے مہینے میں رب کریم سے کروڑوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 20 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں، آپ کی غربت جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، 20 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ رب کریم کی ذات دینے کو تیار بیٹھی ہے۔ میرے بھائیو، شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ جو لوگ ابھی تک شعبان کے مہینے میں رب سے نہ مانگ سکے، اپنی حاجت کو پورا نہ کروا سکے، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج 20 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ 11 بار پڑھ لیں۔ 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے لیے ہے جن کے گھر میں حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو سفید پوش ہیں، جو اپنی عزت کی خاطر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ میرے بھائیوں، آج یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کے دیکھیے گا، میرا رب غیب سے مدد فرمائے گا۔ آپ سفید پوشی میں ثابت قدم رہیں، رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھے۔ 20 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے، اور اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں 1 منٹ اس وظیفے کو نہیں دے سکتا، اگر کوئی 1 منٹ نکال کے یہ خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، اور انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے، کس طرف جائے۔ آج 20 شعبان ہفتے کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھیے گا۔ سفید پوشوں کی غیب سے مدد ہو جائے گی، تنگ دستوں کی، دکھیاروں کی، جن کی جوان بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں رب انعامات کی بارش کرتا ہے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے جس میں کوئی بھکاری فقیر در در کی ٹھوکریں کھانے والا تنگ دست بھی ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے کچھ مانگتا ہے، تو شعبان کے مہینے میں رب اس بندے کی ہر بات کو قبول کرتا ہے۔ شعبان اتنی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں کوئی شرابی، زانی بھی، گناہ گار، سیاہ کار بھی رب کعبہ سے سچی توبہ کے بعد من پسند نوکری، من پسند شادی، قرضوں سے نجات، ذاتی گھر، دولت، جو بھی کچھ بھی مانگتا ہے تو میرا رب خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ شعبان تو گناہ گاروں کے لیے ہے، سیاہ کاروں کے لیے ہے، ان سفید پوش لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں کئی کئی دن تک فاقے رہتے ہیں، جن کے بچے غربت، تنگ دستی کا شکار ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لیجئے۔ آج کسی سے 20,000 روپے مانگنا پڑ جائیں، مشکل وقت ہر کسی پہ آتا ہے۔ اگر آج کسی سے 20,000 ادھار مانگ لیا جائے تو رونا پڑتا ہے، آنکھوں میں آنسو لانے پڑتے ہیں تاکہ سامنے والے کو یقین آ جائے، سامنے والے کو ترس آ جائے۔ خدارا، یہ رب کی بارگاہ ہے۔ رب کعبہ خود فرماتے ہیں کہ میرے سامنے مانگنے والا ہو، اس کی آنکھ میں آنے والے آنسو کو زمین پر یا اس کے رخسار پہ گرنے سے پہلے میں اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہوں۔ رب کے سامنے آنکھ میں آنے والا آنسو آپ کی گالوں پہ بہنے سے پہلے فرشتہ زمین پہ آ جاتا ہے، غیبی مدد کر جاتا ہے، رزق اور دولت کے خزانے دے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج شعبان کا مہینہ ہے۔ اگر میں آپ کو شعبان کی عظمت کے بارے میں دلیلیں دینا شروع کروں، رب کے فرمان بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ میری تمام وہ بہنیں، تمام وہ بھائی جو تنگ دست ہیں، سفید پوش ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، تو آج 20 شعبان ہفتے کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے،
इंशाअल्लाह ये वजीफा 11 बार पढ़ने से आपके घर के हालात बदल जाएंगे। आपकी आने वाली नस्लों तक रिस्क और दौलत की कमी नहीं होगी। आने वाला कल ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। मेरे भाइयों, 20 शबान हफ्ते के दिन इस वजीफे को पढ़ने से आपकी जिंदगी में आने वाली परेशानियां, तंगदस्तियां, मुसीबतें, रुकावटें गैब से खत्म हो जाएंगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। सिर्फ 20 शबान हफ्ते के दिन ये वजीफा 11 बार पढ़ने की देर है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, दुबई, मस्कत, ओमान, जापान, बांग्लादेश, नेपाल, दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है, आप 20 शबान हफ्ते के दिन का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुकान पे हैं, दफ्तर, कारोबार, जिसको जहां जैसे वक्त मिलता है, चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लो। वजीफा छोड़ने का कोई बहाना नहीं, ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आपने ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज आपके हवाले करूंगा। मेरे भाइयों, आप कर्जदार हो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। आप बेरोजगार हो, रोजगार के लिए पढ़ लो। आप बे औलाद हो, औलाद के लिए, नरीना औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो। आप नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। आपके जितने मिसाइल हैं, जितनी मुश्किलात हैं, जितनी परेशानियां हैं, आप 20 शबान हफ्ते के दिन चलते फिरते ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ लो। आप 100 करोड़ भी मांगोगे तो शाम तक मिल जाएंगे। नहीं यकीन आता तो आजमा लो, अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। शबान का रहमतों बरकतों का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। अगर आप एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी का आगाज जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी से मांगना पड़े, तो आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले 20 शबान हफ्ते के दिन की खुसूसी दुआ में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ, आपने आमीन जरूर बोलना है। या अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। अपने प्यारे हबीब के सदके बेरोजगारों को रोजगार, बे औलादों को औलाद, तंग दस्तों को तंग दस्ती से निजात अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, तू दिलों के राज कुछ बेहतर जानने वाली जात है। ऐ मेरे मौला, आज जो भी मेरे बहन भाई परेशान हाल हैं, तेरी बारगाह में हाथ फैलाए बैठे हैं। मौला करीम, मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मौला करीम, तू हर शय पे कादर है, तेरी एक कुन के मोहताज हैं। हमारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। लाइलाज बीमारियों को शफाई कुल्ली अता फरमा और तंग दस्तों पर अपनी नजर करम फरमा। मौला, आज तेरे दर पे हम बेकारी और फकीर बन के बैठे हैं। मौला करीम, बादशाही अता फरमा। आमीन। हजारों लोगों तक ये वीडियो जाएगी, पता नहीं किसी एक आमीन से हम सब की दुआ कबूल हो जाए। आमीन जरूर बोलिएगा। आइए अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अमल क्या है? 20 शबान हफ्ते के दिन आप सुबह नमाज फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। बावजूद मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। बेहतर तो यह है कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। सिर्फ एक बार पढ़ना है दुरूद पाक। दुरूद पाक से पहले एक बात तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि अब तक आप वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं, लेकिन अब एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ही अहम है। अब अमल का तरीकाकार बता रहा हूँ। आज मौका है शबान मेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। शबान अल्लाह से अपनी हाजतें पूरी करवाने का महीना है। आज इस वजीफे को स्किप करके देखोगे तो कोई कीमती अहम बात आपसे मिस हो गई तो वजीफे का फायदा नहीं होगा। इसलिए वजीफा सिर्फ 1 मिनट का है। मेरे बताने समझाने में वक्त लग रहा है, लेकिन आप सिर्फ 1 मिनट में पढ़ लेंगे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वरना पूरे साल का पछतावा आप अपनी किस्मत में खुद लेकर आएंगे। आइए अमल की तरफ चलते हैं। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है।
पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। मकसद की नीयत जरूर कीजिए। आप रिस्क चाहते हैं, आप दौलत चाहते हैं, आप मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, आप बेरोजगारी के लिए, बेऔलादी का खात्मा चाहते हैं, आपकी जो हाजत है, जो ख्वाहिश है, जो भी आप मांगना चाहते हैं, आज सफेद पोश लोग जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, रब की बारगाह में मकसद की नीयत करके बैठे। बेटियां रिश्तों के लिए, बेटे रोजगार के लिए, कर्ज से निजात के लिए, नाफरमान औलाद के लिए, जिसकी जो भी हाजत, हर इंसान का मकसद अलग है। जिसको आज जो भी चाहिए मांग लो। आज जो भी मांगोगे 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। अपने मकसद की नीयत करते ही फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। अब आपका दुनिया से ताल्लुक खत्म। तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ आपने रब की बारगाह में बैठ के वजीफे को पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब काबा के 2 सफाती नामों का वजीफा है। इनमें से एक नाम रब का जाती है, एक रब की सिफ्त है। आपने या अल्लाहु या करीमु को पढ़ना है। या अल्लाहु या करीमु, या अल्लाहु या करीमु, या अल्लाहु या करीमु को आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम पढ़ना है। इंशाल्लाह ये वजीफा सिर्फ 1 मिनट का होगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। मेरे भाइयों, शबान जिसे असमत वाला, बरकत वाला महीना कहा जाता है, इस महीने में मांगी गई हर दुआ अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कबूल फरमाते हैं। आज 20 शबान हफ्ते के दिन जो कोई सफेद पोश है, जो कोई तंग दस्त है, दुखियारी है, परेशान है, कर्जदार है, अपने मकसद को जहन में रखते हुए या अल्लाहु या करीमु, या अल्लाहु या करीमु, या अल्लाहु या करीमु को सिर्फ 21 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाहु या करीमु 1 बार हो गया, या अल्लाहु या करीमु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या करीमु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाहु या करीमु, या अल्लाहु या करीमु को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। और 21 बार या अल्लाहु या करीमु पढ़ते दौरान जो भी मांगोगे मिल जाएगा, मिलकर रहेगा। रब की एक नजर करम जिस पर हो जाती है उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। उसके घर से हर तरह की रुकावटों, बंदिशों का खात्मा हो जाता है। और 21 बार या अल्लाहु या करीमु पढ़ने से जिस पर रब की नजर करम हो जाएगी, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। उस घर के हालात बदल जाते हैं। उस घर पर रब की नजर करम होने की देर है। आज रब की नजर करम का वजीफा आपके हवाले किया है। आपने या अल्लाहु या करीमु को बताए गए तरीके से पढ़ना है। जल्दबाजी में मत पढ़ना। या अल्लाहु या करीमु को बताए गए तरीके से पढ़ते ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो चलते फिरते सिर्फ 3 बार पढ़ना है। मेरे भाइयों, ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है और इस वजीफे की ताकत, फजीलत इतनी ज्यादा है कि इसे सिर्फ 3 बार पढ़ने वाला ताकतवर दुश्मन से निजात पा लेता है। सिर्फ 3 बार पढ़ने से कारोबार की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने से आपकी तरफ आने वाले मसाइल, आने वाली परेशानियां जिनको आप और मैं नहीं जानते, मेरा रब जानता है। मेरा रब इनका भी गायब से खात्मा फरमा देगा और आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बहुत खास, बहुत अहम है। वीडियो स्किप नहीं करनी। आप वजीफा बताए गए तरीके से पढ़िएगा। आपकी एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। आप रब करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसे मांगोगे, मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। आपने सूरा कौसर को पढ़ना है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। पहले नंबर पर या अल्लाहु या करीमु को, दूसरे नंबर पर सूरा कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। सूरा कौसर एक ऐसी सूरत है जिसके बारे में रब करीम ने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, सूरा कौसर जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। मेरे भाइयों, आज 20 शबान हफ्ते के दिन सूरा कौसर को 3 बार पढ़ने से 300 रिज़्क के दरवाजे खुलते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं मेरे भाइयों, 300 रिज़्क के दरवाजे खुलते हैं। आज खजानों को लूटने का दिन है। खजाने लूटने का वजीफा बता रहा हूँ। सिर्फ 3 बार
सूरा कौसर पढ़ने से आपके पास रिस्क और दौलत रखने की जगह नहीं बचेगी। मेरा रब इतनी दौलत से नवाजेगा, मेरे रब की रहमतें, बरकतें, नियामतें बरसना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ 3 बार सूरा कौसर पढ़ने की देर है। आज का ये वजीफा तमाम सफ़ेद पोश बहन भाइयों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए, तंग दस्तों के लिए, दुखियारी के लिए एक तोहफा है। खुदारा इस वजीफे की कदर कीजिए। आज 20 शबान की कदर कीजिए। 20 शबान हफ्ते का दिन है। वजीफा पढ़ते ही एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा और ये रब के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने में मांगने वाले को 70 गुना दिया जाता है। आज कोई बंदा 1 करोड़ मांगेगा, मेरा रब 70 करोड़ से नवाजेगा। आज रब से वो मांगना जो आपकी अकल कहती है कि ये नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये मिल नहीं सकता। आज 20 शबान हफ्ते के दिन ये वजीफा शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आप रब करीब से हाथ उठा के जो भी मांगोगे, मेरा रब ना शक्लें देखता है ना अमाल देखता है। जब देता है तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से छप्पड़ फाड़ के अता फरमाता है। खुदारा आज का ये वजीफा इतना खास है कि मेरा बस चले मैं आपको बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे बैठाऊं और कहूं कि ये लापरवाही छोड़ो। ये तमाम तंग दस्तों के लिए, बेकारी, फकीर और परेशान हाल लोगों के लिए खजाने लूटने का दिन है। आपने या अल्लाहु या करीमू के बाद दूसरे नंबर पर सूरा कौसर को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक नुक्ता एक एक बात बच्चों की तरह समझाई है ताकि आपसे छोटी सी भी कोई गलती ना हो। इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो स्किप करने से अगर कोई अहम बात आपसे मिस हो गई, आपसे छूट गई, तो ये दिन भी जाया हो जाएगा। फिर 1 साल बाद मौका मिलेगा मेरे भाइयों। सूरा कौसर पढ़ते ही तीसरा और आखिरी वजीफा तो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। जिसको पढ़ने वाला गनी हो जाता है, जिसको पढ़ने वाला फकीरी में बैठ के ये वजीफा पढ़ता है और मसल्ला छोड़ने से पहले बादशाही में चला जाता है। आपकी गुर्बत अमीरी में बदल जाएगी, आपकी तंग दस्ती कामयाबी में बदल जाएगी। आप अगर अपनी औलाद, अपनी नस्लों, अपने कारोबार में तरक्की, अरूज और कामयाबी चाहते हैं तो तीसरे नंबर पर आखिरी वजीफा जो पढ़ना है वो वजीफा है मेरे भाइयों, या गनीयू या मुगनियू, या गनीयू या मुगनियू, या गनीयू या मुगनियू। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या गनीयू या मुगनियू 1 बार हो गया, या गनीयू या मुगनियू 2 बार हो गया, या गनीयू या मुगनियू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या गनीयू या मुगनियू को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आप तस्बीह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप तस्बीह पे पढ़ें, हाथ पे पढ़ें, जैसे दिल चाहता है पढ़ें, लेकिन आपने ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। इंशाल्लाह जब जब आपकी जुबान से या गनीयू या मुगनियू निकल रहा होगा, जो जो दिल में आएगा वो मिलकर रहेगा। शाम तक 100 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा रब देने पे कादिर है। फौरी यह भी मदद हो जाएगी। जिस चीज में हाथ डालोगे वो सोना हो जाएगी। जो कई सालों से रुकी हुई दुआएं हैं, कई सालों से रुके हुए काम आज एक दिन के अंदर हो जाएंगे। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो 20 शबान के दिन ये वजीफा छोड़ेगा। मेरे भाइयों, या गनीयू या मुगनियू पढ़ते ही आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। मैं फिर कह रहा हूँ, या अल्लाहु या करीमू, सूरा कौसर और या गनीयू या मुगनियू को कितनी तादाद में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक नुक्ता बताया है। जल्दबाजी नहीं करनी, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। एक एक चीज वाकई बच्चों की तरह बताई है। आज सफेद पोशों की ईद है, तंग दस्तों की ईद है, खजाने लूटने का दिन है। वजीफा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ उठा के आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में आ जाता है। फिर वजीफे जितने मर्जी ताकतवर हों, जितना मर्जी कबूलियत का दिन हो, वजीफा और दुआओं को कबूलियत नहीं मिलती। इतना ताकतवर वजीफा करने के बाद आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब ने सच्ची तौबा कबूल कर ली है, अब दोनों हाथ उठाकर रब करीम से मांगना शुरू कर देना। हो सके तो सजदे की हालत में मांगिएगा। सजदे में इंसान रब के करीब तरीन होता है। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, फिर इतना देता है कि नियामतों से, रहमतों से, बरकतों से झोलियां भर देता है। खुदारा ये वजीफा शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से करना है। इंशाल्लाह जिसकी सच्ची तौबा कबूल हो जाएगी। मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि आज जो मांगोगे आपके मुंह से निकली हर हाजत पूरी हो जाएगी। अब दोनों हाथ उठा के रब से इनाम लेने का वक्त है। आज खजाने लूटने का दिन है। आज अगर अरबपति बनना चाहते हो तो दोनों हाथ फैला के बेकारी फकीर बन के, मंगता बन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगिएगा।
آج 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات سے مانگ رہے ہو، آج تھوڑا نہ مانگنا، جو مانگنا مانگتے چلے جانا، آج مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کرے۔ جزاک اللہ۔